Students, today in the chapter of integers, we are going to solve exercise 1.2. But before starting it, let's have a summary of properties of addition and subtraction of integers. So, first one is integers are closed under addition and subtraction. What does it mean? It means when we add integers, the result must be integers, and when we subtract the integers, the result must be integer. This property is also called closure property. So examples देख लेते हैं. When we add 7 and 8, we get 15, and all three 7, 8 and 15 are integers, and we have added two integers, and that results in integer. Similarly, minus 7 plus 5 is equal to minus 2, and minus 7, 5 and minus 2 are integers. In case of subtraction, when we subtract 9 from 7, we get minus 2, and as we know, 7, 9 and minus 2, all three are integers. Similarly, when 5 is subtracted from minus 2, the result is minus 7, and we know minus 2, 5 and minus 7 are integers. So we can say or conclude that integers are closed under addition and subtraction, or integers follow the closure property under addition and subtraction. Next is addition is commutative for integers. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, if a and b are integers, then if we write it like a plus b, or add b in a or add a in b, both will result in same. ओके, ये ऑर्डर से रिलेटेड है कि हम अपना एडिशन किस ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं. जिस भी ऑर्डर में हम लेंगे, अगर वो सेम आ रहा है तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होगी. सो यहाँ पर हम देखते हैं, व्हेन वी ऐड 7 प्लस 3, दैट मीन्स वी ऐड 3 in 7, द रिजल्ट इज 10, and when we add 7 in 3, the result is again 10. Similarly, minus 2 plus 3 or 3 plus minus 2, we have same result in both cases, that is 1. Okay, so addition is commutative for integers, and at the same time I want to remind that subtraction is not commutative for integers. So as this is the summary, so I have not written it here. Now in third part or third property, we can see addition is associative for integers. एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई तीन इंटीजर्स हैं a, b और c, और अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसको हम c में ऐड कर लेते हैं, तो वो है ये पार्ट. और अगर हम b और c को पहले ऐड करते हैं आपस में, और जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है उसको a में ऐड कर लेते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिलता है. और अगर ये दोनों कहीं पर भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दैट मीन्स सेम है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. एंड इंटीजर्स एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. यू कैन सी दिस विद द एग्जांपल 2 + 3 + 1. ओके, ये एडिशन हमने करना है. इसमें हमने पहले 2 और 3 को ऐड किया. 2 + 3 इज़ 5 + 1 इज़ 6. एंड सेकेंड पार्ट, या राइट हैंड साइड में हम कहें तो 3 + 1 हमने पहले कर लिया. 3 + 1 4 + 2 6. इसे हम कई बार क्लासेस में भी देखते हैं, बच्चे अलग अलग तरह से ऐड करते हैं, जिससे 3 + 2 कर लिया, +1 कर लिया, रिजल्ट 6 आ गया. ठीक है, या फिर दूसरे बच्चे ने किया, उसने 3 + 1 को पहले ऐड कर लिया, उसका 4 आया, प्लस उसने उसके बाद में 2 को लास्ट में ऐड किया. ओके, सो सिमिलरली वी कैन सी -2 + 3 एसोसिएटेड टुगेदर, देन एडेड टू -1. ओके, अब अगर ऐसा हम करते हैं तो 3 + -2 इज 1, and 1 is added to -1 gives 0. Here 3 and -1 are associated together, and the result is added in -2, and the result 3 + -1 is 2, and when this 2 is added with -2, results in 0. So means associative property holds for addition of integers. Now fourth one, 0 is additive identity for integers. That means when we add 0 in an integer,
द इंटीजर कम्स बैक, वही इंटीजर हमें वापस रिजल्ट में मिल जाता है एज 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 और -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -2 and this is -2. So we should have to remember all these properties to solve the exercise. So let's see the exercise question number 1. Number 1, write down a pair of integers whose sum is -7. अगर ये 7 होता तो हम सिंपली कह सकते थे दिस मस्ट बी 4 प्लस 3 और 5 प्लस 2 और 6 प्लस 1, बट दिस इज -7, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अगर हमें ये पता है कि 5 और 2 ऐड करने पर 7 आता है तो हम लिख सकते हैं सिंपली -2 प्लस -5. So this will result in -7. Similarly, you can write -4 plus -3. So दो पेयर के ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आप और सोच सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. डिफरेंस इज -10. दोनों का डिफरेंस -10 आना चाहिए. दोनों का डिफरेंस -10 आना चाहिए. इसका मतलब दो इंटीजर हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें से अगर हम एक नंबर को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -10 मिले. ओके, सो इफ वी राइट -2 and subtract 8 from it, we get -10. Okay, you can search for another pairs. Now question number 2, write a pair of negative integers whose difference gives 8. यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम ही है लगभग क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बट यहाँ पर हमारे पास अब एक कंडीशन है कि हमें एक पेयर देना है और वो पेयर होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर्स का जिनका डिफरेंस 8 आए. ओके, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस -2 -10. ओके, सो ये क्या बन जाएगा हमारा -2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 10 प्लस में है. ओके, और -2 दैट इज +8. ओके, आप इसके और पेयर सर्च करेंगे. नेक्स्ट पार्ट बी हम देखते हैं. पार्ट बी इज राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर. अब कंडीशन हमारे पास है कि एक इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और दोनों का सम -5 होना चाहिए. ओके, अगर हम देखें 7 -7 +2 इज इक्वल्स टू -5. ओके, 7 और 2 हमारे पास हैं दोनों जिनका डिफरेंस 5 होता है. तो हमने बड़ा जो नंबर हमारे पास है उसको हमने नेगेटिव इंटीजर में चेंज कर दिया -7, और दूसरे नंबर को जो छोटा नंबर है उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया. तो हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज़ -5. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, question number 3. The question number 3 is, in a quiz team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. 3 राउंड हुए क्विज के, तीनों के अलग अलग स्कोर्स हैं और तीनों स्कोर्स दोनों टीम के लिए लिख दिए गए हैं, तीनों राउंड के स्कोर्स. नाउ विच टीम स्कोर्ड मोर. कैसे पता चलता है क्विज में, जब हम तीनों राउंड के जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो स्कोर्स हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं तो किसी भी टीम का टोटल स्कोर हमको पता चल जाता है. सो सिमिलरली व्हाट वी हैव डन हियर, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए -40 +10 +0 and this results -40 + 10 that is -30. Next, similarly score of team B 10 +0
plus minus 40, and this results 10 minus 40 and minus 30. As we can see, both the team scored minus 30 marks. Okay, so both the teams scored same. Okay, so दोनों टीम का स्कोर बिल्कुल सेम रहा है. और सेकेंड पार्ट इसका हम देख लेते हैं. सो वी कैन राइट हेयर दस द स्कोर ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम. नेक्स्ट है, कैन यू से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. ये हमने प्रॉपर्टी इससे पहले पढ़ी थी अभी कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. इसको मैं वापस एक बार आपको दिखाता हूँ. दिस वन, एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मैंने बात की थी आपकी कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. 7 + 3 करें या 3 + 7 करें. सो एडिशन इज कम्यूटेटिव for integers. Now let's come to the question number 4. This is the fill in the blanks type question, and the blank should be filled in such a manner that the equation holds true. कोई भी इक्वेशन बेटा बनती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होने से. तो हम दोनों एरियाज को कंपेयर करेंगे. लेट्स सी -8 on both side. Here this is -5 but this is blank, so we will write here -5. Okay, similarly -53 plus something is equal to -53. As both are same, so there will be an integer 0. Okay, next in 17 plus this, what we can write here? 17 plus dash is equals to 0. This is a positive integer, and when we add a negative integer of same value with it, it will result in 0. So we have to write -17 in a bracket here. So this will be 0 -17. Okay. Now come to next part, fourth one. 13 plus -12 is equals to dash plus equals to 13 plus -12 plus -7. जैसा हमने पहले देखा था, ये आपका एसोसिएटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, एसोसिएटिविटी को शो कर रहा है. 13 plus -12 को एक साथ पहले लिया है, यहाँ 12 - 7 को लिया है. बट एक चीज़ कॉमन रहेगी कि दोनों साइड टर्म्स सेम होने चाहिए. ओके, सो हेयर इट इज़ 13, हेयर इट इज़ 13 -12 लेफ्ट वन इज -7. सो दिस मस्ट बी -7. हेयर लास्ट वन -4 + 15 + -3 is equals to -4 + 15 associated together plus the last one. 4 is here, 4 is here, -4 is here, -4 is here, 15 is here, 15 is here, but the missing term is -3, so we will write in a bracket -3. So this was the exercise 1.2. So complete it and have a